करने वाला है। All right, 10 PL, Season 4, Day 2, first match, first ball is about to begin. Mitesh Darbar with the ball, charging towards the batsman. Tushar, the opening pair for Globelink, have already made their way onto the crease. Tushar, and he's accompanied by onto the non-strikers then, it's Avinash. Well, this is going to be a very interesting contest between these two sides. Valsad strikers taking on Globelink, Westar Shipping. There you go, the first ball on a roll. Beautiful delivery, amazing hit this time over to the final leg region. What a start, a welcome boundary, a dream start for this man. He's straight off the mark with a boundary. Tushar. बड़े खूबसूरत अंदाज में गेंद की लाइन और लेंथ से बहुत भली भांति वाकिफ हो गए थे पहले ही पढ़ने के साथ, टप्पा खाने के साथ ही, और किस तरह से मोड़ा लगातार। और ये अंदाज आप देखेंगे ओसामा भाई, जिस तरह से अगर शुरुआत इस कदर होती है, इस अंदाज में होती है, तो यहां से आत्मविश्वास और मजबूत होता चला जाएगा। This time a great comeback delivery by the bowler Mitesh Darbar. Yes, exactly, you rightly said, Abhishek, whenever you get a dream start like this, whenever you go for a boundary on the very first ball of the match, then definitely you have that confidence in you that you can score some big runs in the game. That was a low full toss delivery, nicely placed towards the mid-off region. There is a bit of misfield, but no damage has been done. A dot ball again into the account of Tushar. That wasn't also a very bad delivery, Abhishek, the one which has gone for a boundary on the very first ball. Credit goes to the batsman because he managed it rightly well. Amazing delivery, what a shot, great timing, beautiful execution right into the gap. 4 more runs add to the scorecard as well as into the individual score of Tushar. जैसे आप देखते हैं कि चिड़िया दाना खोद कर निकालती है, कुछ इस तरीके से इस शॉट में दिखा कि उसी तरीके से बल्लेबाज ने खोद करके निकाला, और अपने पिटारे से इस तरह के शॉट अगर निकालेंगे तो फिर देखकर और मजा आएगा इस एरियाज में, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। This time wanted to go for a reverse sweep, but completely beaten, and the ball has landed safely into the hands of the wicketkeeper. Yes, exactly. It's always a pleasure to watch a batsman scoring runs into the extra covers area, because that is the one where, you know, a batsman can give you the stylish shots into the extra cover region, and that's what exactly Tushar has done in the third delivery of this over. Beautiful delivery again this time. There's a change of a pace onto that one. A thick outside edge, but fortune in the favor of Tushar as the ball hasn't traveled to the fielder. Well, that brings up the over after the completion of very first. It's 9 for none. देखिए, एक चीज है कि कवर और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हम देखेंगे कि सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। बल्लेबाज यहाँ पे रिस्क लेने का सोचेंगे, क्योंकि अगर उनके सर के ऊपर से भी गेंद निकलती है तो वो खतरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर कोई फील्डर मौजूद है नहीं उस एरियाज में, तो निश्चित तौर पे बल्लेबाज के द्वारा ऐसे शॉट्स देखने को मिलेंगे। I hope that the story of this game shouldn't go as we have seen in the very first day, because in the earlier sessions of the match, the batsmen were going for some big hits, and when it comes to the slog overs, the actual run rate has just lowered down to something around 2 an over. But if they carry this momentum forward, then definitely the score at the end of 8 overs, I predict it would be something around 80 to 85.
यहाँ 82 85 अगर आपका प्रेडिक्शन है वहां तक अगर टीम जाती है तो थोड़ा अच्छा स्कोर रहेगा, मैच में ट्विस्ट आएगा, मैच देखने में भी मजा आएगा, क्योंकि ये स्कोर जो है फाइटिंग टोटल से आगे निकलने वाला स्कोर है आई थिंक। Change in the bowling department. New bowler comes in, Himanshu, with his spells very first and the team's second over in progress from the commentary box end. Dancing down the track, nicely played it towards the long on region. There's a protection in the deep though. Just one run to be conceded. He actually wanted to go for some biggies. He's not taking his time to settle down over there. Because I also believe that this is the right strategy. If you're having a right hand left hand combination on the crease. Yes, right. Okay. Tushar and Avinash, the opening pair, right hand left hand combination. They always trouble the bowling department. You also have to, Bowler ready, do play. some changes in the fielding department. Full toss delivery, that was a juicy full toss, nicely played towards the point region. Umpire signals it as a no ball in his own beautiful action. Umpire Mohammad Rafi. Man from Rajasthan, man from India. Doppelganger of Billy Bowden. Batsman free hit. One. Red alert here at Lal Bhai Contractor Stadium, Surat. A free hit coming in. Beautiful delivery right outside the off stump into the slot, but he hardly managed to put it down towards the boundary. Just one run to be conceded on that occasion. Valsad have won the toss and they have elected to bowl first. What do you think, Abhishek? How far is that going to be the right decision for them? देखिए अगर सुबह के समय में आप ये फैसला कर रहे हो तो मुझे लगता है राइट वे में जा रही है, सही डिसीजन है कप्तान का, वो चेज करना ज़्यादा पसंद करेगी और शाम जैसे जैसे होती चली जाएगी तो आप पहले देख रहे थे कैप्टन टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये फैसला निश्चित तौर पे मुझे लगता है ये सही होने वाला है। बट क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ भी कहना, कोई भी प्रेडिक्शन करना ये खतरे से खाली नहीं होगा। Avinash and Tushar. When it comes to Avinash, he's taking his time. He don't want to throw his wicket away by going for any risky shots. At the same time, Tushar is doing a great job. He already having 2 boundaries into his account. Dancing down the track. This time again wanted to go it for the long off region. A thick outside edge. And the ball has just rolled on towards the gully region for a single. 8 overs of game, 2 overs of mandatory power play, Abhishek. They have already moved on to 15. And I think it is not a bad score when the second over is still in progress. और एक चीज और जो हमने देखा कि पावर प्ले का बल्लेबाज बहुत लुत्फ उठाना चाह रहे हैं, जमकर रन्स बरसाना चाह रहे हैं और वो उन्होंने पहली गेंद से ही ये चीज बता दिया था। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरे ओवर के क्रिकेट में लगातार टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी चुनी है, आज दूसरे दिन SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 PL सीजन 4 का ये दूसरा दिन है, एक शानदार लम्हा इस ग्राउंड पर। Slow and steady, building up a partnership, the first wicket partnership for Globelink West Star Shipping. Again, dancing down the track, high up in the sky, fielder coming underneath it, just short of the fielder. But he well managed to pick up a couple of runs on that occasion. 2 runs to end the over, 18 for none after 2. तो देखिए अभी पावर प्ले के ओवर्स में हमने देखा कि फील्डर के अनुरूप गेंदबाजी में थोड़ी सी कमी दिखाई दी। जिस तरह से जिस एरियाज में फील्डर को लगा रखा था किसी भी तरीके के संभावित कैच के लिए, वो चीज देखने को नहीं मिला।
ये खूबसूरत सी सुबह एक बार फिर से आप सबका इंतजार कर रही है। आप लाइव स्ट्रीमिंग में बने रहिए हमारे साथ, ग्राउंड पे बने रहिए हमारे साथ। कल आपने देखा दर्शकों की तादाद किस कदर उमड़ रही थी इस ग्राउंड पर। ये बता रही है, ये बयां कर रही है कि ये जो 5 दिनों का 10PL सीजन 4 है वो किस तरीके से परवान चढ़ने वाला है। Exactly, Abhishek. If you turn the clock and go back 10-12 years back, we haven't witnessed such big tournaments. We actually couldn't expect such big tournaments coming in for tennis ball cricket. In the recent times, in Telangana, in Hyderabad, we hardly, saw the tournaments of around 2 lakhs of cash prize. But this is something into the next level. This is something Petroman, which is trying really hard to push the tennis ball cricket and taking it to the new heights. Have you ever thought that, tennis ball cricket might also witness a World Cup? Nicely ball this time. Beautiful delivery. A bit of turn on that occasion for Jeet Patel. टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो भारत लौटा है, हिंदुस्तान लौटा है। लगातार 3 सीजन आपने देखा था हिंदुस्तान की सरजमी से बाहर, और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज करा है कि कोई टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट इस कदर 2 कंट्रीज में आप पहली बार देखेंगे। और अभी जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, इससे पहले यूएई में देख रहे थे। थैंक यू वेरी मच। पूरी क्रेडिट गोज टू आरिफ खान सर एंड उनकी पूरी टीम को जाता है, जिस तरह से इन्होंने बड़े शिद्दत तन्मयता के साथ आयोजित किया है। Beautiful delivery this time. Full length delivery, nicely played. With the flick of the wrist, given the direction towards the mid-wicket region. And a great running between the wickets. Yes, indeed, Abhishek. It is the hard work of Arif Bhai Petroman and his entire team. You name Aslam Bhai, you name Tanveer Bhai, you name Asif, you name Sanveer Bhai, Ashraf Bhai. Everyone has contributed a lot to take this tournament to a new heights. Chance of a run out, direct hit could have done the damage. But back into the crease. These are the names who have, worked really hard day and night, sweating each and everything on field, off the field, to make this tournament a grand successful. And this is the 4th edition that we are witnessing. Have you ever noticed that we are having a stump camera in the tennis ball cricket? This is the great achievement for tennis ball for sure. बिल्कुल सही बात कही आपने। जो सारी चीजें यूज होते हुए आप देखेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो सब कुछ संभवतः आप वर्ल्ड कप में देखेंगे, एशिया कप में देखेंगे, आईपीएल में देखेंगे। और वो चीज को आप अगर 10PL में ला रहे हो, ऐसे टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट में ला रहे हो, तो वाकई दाद देनी होगी। And the sponsors like SkyExchange.net, who have been a part of Road Safety Legends series, and Akar Chain, DG Bits, Sokos.io, and Pepsi. It's kind of a really big achievement for tennis ball cricket, wherein such big sponsors and UYP, Unleash Your Partner. Beautiful delivery, thick inside edge, and that will be gathered by the wicketkeeper behind the stumps. No run conceded again. 3 overs gone. 23 for none. चलिए एक नजर इस मैच पर डालते हैं। तो 3 ओवर के बाद अब 23 रन स्कोर है बिना किसी विकेट के। तो ये बल्लेबाज तो अब यहां से लगातार इनिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तुषार और अविनाश दोनों लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टीम को आगे ले जाया जाए। एक रणनीति बनाई है। कल के मैच को देखकर
इन्होंने बहुत जरूर कुछ सीखा होगा, जरूर कुछ स्ट्रेटेजी तैयार होगी, विकेट कैसा बिहेव कर रहा है, ग्राउंड का क्या हाल है और किस एरियाज में कैसे स्ट्रोक लगाए जाएं, किस पर काम किया जाए। तो ये सब चीज जरूर गेंदबाजों ने भी इस पर काम किया किया होगा जरूर। किस लाइन और लेंथ पर टप्पा डाली जाए, कहां पे गेंद ज्यादा रखी जाए, किस एरियाज में फील्डर को सेट करा जाए। See, I believe Globelink Vestas Shippings are in a right good position now because they haven't lost any of the wickets and still they are having 10 wickets in hand. 5 more overs to go. One more over from here on. If they consider 8 to 10 runs in this over, then they can change it down the gear and they can go for some big hits, which could, from there on they can easily manage to get something close to 40 to 50, which might take the total to 80 or 85 around. Pulalan delivery, nicely played. That was a half volley delivery. Beautiful piece of fielding work. Definitely saved some runs for his team. Jeet is the man who is patrolling onto the long on region. What a magnificent fielding effort. Saved 2 runs for his team. Tall man patrolling on the right region. Exactly placed by the captain himself. Beautiful delivery this time. Ready towards the point region. Just wanted to be taken. Wanted to go for a couple. They will complete. And this time we have to wait. Calm your nerves. The umpire has walked over to the upstairs. Third umpire decision pending for a run out here. This is also a great improvisation in the tennis cricket. You are having cameras all around which can, catch each and every visuals so that you don't have to worry much about whatever the things are going on the field. Nicely gathered, and it will be a not out decision because he was right into the crease in time. तो यहाँ पर नॉट आउट का इशारा आता हुआ अंपायर से और सुरक्षित थे क्रीज पर। जिस तरह से लगातार अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि बल्लेबाज अभी तक किसी बड़े शॉट की तरफ गए नहीं है। सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है, क्योंकि उनको पता है अगर ड्रॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ तो फिर चीजें सारी की सारी धरी रह जाएंगी और मुश्किल हो जाएंगी। Just given the direction this time towards the point region for a single. But what I believe, Abhishek, they have to change the gears now because they are halfway to the innings and the score is 28. They haven't lost any wicket. So if they can go for a couple of boundaries in 1 over and maintain that strike rotation, so they can easily concede 10 or 12 overs in over, 10 or 12 runs in an over. So that would be a added advantage for the batsmen who will be coming later and put some extra runs onto the board. और इसी के साथ ये शॉट देखिए, ताकत देखिए किस तरह से जनरेट किया था। गेंद खराब थी जरूर और बल्लेबाज ने उस पर 6 के मुहर लगा दिया। Exactly. Party joined by Avinash this time. देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि अगर एडवांटेज रहता है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के पास, अगर वो यहां से एक अच्छी शुरुआत देकर के जाएं, लेकिन कल के मैचेस में भी हमने देखा था शुरुआती के 4 ओवर जो शुरुआती के रहे थे उनमें से रन्स जमकर आए थे, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर वैसा काम नहीं कर पाई। This is what exactly I was talking about. He has changed the game now. Avinash doing the job quite well. 1-6 and a boundary this time over to the point region. He's a dangerous man. What a beautiful shot. He knew exactly that the bowler is going to punch it hard onto the deck. And he was actually ready to play that shot out to the backward point region. And that's what exactly has done, considered a boundary.
Nicely ball, high up in the sky, fielder underneath it. Jeet takes the catch. First wicket down here, and Himanshu Patil is the man who has done the job. 4 overs gone, 38 for the loss of 1, and that will bring up the Akar Chain strategic timeout. टाइम आउट हो गया, टाइम आउट. Akar Chain strategic timeout, and post the strategic timeout, the commentary box will be taken over by the two lovely voices, one from Bhiwandi, one from Goa, Ajay Karat and Harish Kakodkar. Over to you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया उसामा. सभी को सुप्रभात. आप सभी का हार्दिक स्वागत. SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman. आज के दिन का पहला मुकाबला. बहुत ही खूबसूरत सुबह है यहाँ पर सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में, और ये पहला मुकाबला आज का, जिसमें पहले बल्लेबाजी करती हुई ग्लोबल लिंक वेस्टार शिपिंग टीम. दूसरा मुकाबला है उनके लिए. पहले मैच में हार झेलनी पड़ी थी, और वो मुकाबला जो था उसमें उन्होंने रन चेज किए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल रन चेज रहा नहीं था. बबलू पाटिल की अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर देखने को मिली थी, वो एक पॉजिटिव रहा उनके लिए. लेकिन आज पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, थोड़ी अलग शुरुआत भी देखने को मिली है. अच्छी शुरुआत कही जा सकती है. 4 ओवर्स के बाद 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अभी अभी विकेट गिरा. हिमांशु पाटिल को अपनी अंतिम गेंद पर सफलता मिली. वलसाड स्ट्राइकर्स जो कि फील्डिंग करने वाली टीम है, मितेश दरबार अपना नया ओवर लेकर. बहुत ही खूबसूरत ड्राइव स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, लेकिन डीप में वहाँ पर प्रोटेक्शन. 1 रन मिलेगा. विशाल रणदीवे सलामी बल्लेबाज कप्तान, उनके साथ विशाल निघोट आए हैं. अविनाश रामगोड़े आउट हुए हैं. 39 पर 1 इस समय. अंतिम 4 ओवर्स का खेल जो बचा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी जगह ज़रूर थी, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे बल्लेबाज. कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए मैन फ्रॉम गोवा हरीश काकोडकर, स्वागत है आपका दूसरे दिन के खेल में. Welcome and good morning to all the viewers and listeners on this 10PL. This is the second day and the start is pretty good. We got a good start in both the openers, although one opener is back in the pavilion. ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ मूवी गेंद. विकेट है, उसमें ज़रूर सहायता है. कल के जो 5 मुकाबले हमने देखे, गेंदबाजों ने अच्छा खासा लाभ उठाया इस विकेट का. थोड़ी जिप भी नज़र आ रही है विकेट में, गेंद तेज़ भी निकलती है. हालांकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा, ये विकेट और धीमा होता चला जाएगा. कल खासतौर पर बहुत अच्छा बाउंस, बहुत अच्छा कैरी देखने को मिला विकेट में. इस गेंदबाजों ने काफ़ी लाभ उठाया. कदमों का इस्तेमाल, इस बार मोटा सिरा लगा है. बढ़िया फील्डिंग गली में, लेकिन एक सिंगल चुराने में कामयाब हुए बल्लेबाज. स्ट्रोक के साथ ही बल्लेबाज निकल भी पड़े थे रन के लिए. कोई हेजिटेशन नहीं था दोनों बल्लेबाजों के मन में. ये सही रणनीति आपको लगती है कि बायात के बल्लेबाज आउट होने के बाद बायात के बल्लेबाज को ही भेजा गया है? I think it's the right decision because many a times when the batsmen play well with the left-hander, they got a good start. They want to continue with that. And that has worked for them as opening pair, and now they feel that
That's the best combination to go ahead and get few more runs. गेंद हवा में है, फील्डर देखते ही रह जाएंगे। जबरदस्त टाइमिंग, मैक्सिमम। Well, if you have a look at both the sixes that have been hit, both have been hit off full toss. It's not like bowlers have bowled short balls or good length and the batsman has hit them for sixes. Both were full toss and they were ready for that. And that's where the bowlers and the bowling side need to concentrate on a better line, better leash to trouble the batsman. If this continues, then this might be a big total posted. काफी समय गुजार लिया है क्रीज पर तुषार रणदीवे ने। अब अपने हाथ खोलते हुए इस बार रिवर्स खेल दिया और बिल्कुल गैप में निकाल दिया है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार मिलेंगे 4 रन। And they are definitely going to go after the bowling. There is no second thought. This is an 8 overs match, and if you consider a very good start by the openers that is given in 4 overs, then certainly with 9 wickets in hand in tennis ball, you definitely go onslaught right at the 5th over itself. जी हाँ, और कहीं ना कहीं कल थोड़ा स्टडी भी किया होगा उन्होंने। मैच हारने के बाद कल के और मैचेस भी देखे होंगे और कहीं ना कहीं जो औसतन स्कोर रहा पहले 4 मैचेस में, खासतौर पर कल के 8-8 ओवर्स के जो मैचेस हुए वो 73 रहा। उस हिसाब से भी कहीं ना कहीं ये प्लानिंग की गई है। इस बार सिंगल तो मिलेगा ही, दूसरे की क्या कोशिश होगी कि नहीं, तो वो भी एक रणनीति का हिस्सा नज़र आ रहा है। सोच यही रही कि पावर प्ले के दौरान भी ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है, थोड़ा धीमा ही खेलना है, संभली हुई शुरुआत करनी है और वो देखने को भी मिला है। जो सोच कर आए हैं वो करते हुए बल्लेबाज। 5 ओवर की समाप्ति, 51 पर 1 इस समय ग्लोब लिंक वेस्टार। Well, one more thing that has changed from yesterday and today, the most important factor is the boundaries. The boundaries have been shortened a bit. Yesterday it was full about the bowlers. Even a good hit that was played by the batsman was almost taken on the boundary edge, and especially at the night time when there is dew and the moisture content is there pretty high in the air, the ball also does not travel. So now it's even Stevens here. It's even Stevens for the batsman, for the bowlers. Batsman feeling dejected. Yes, I had hit this ball pretty well, but still it's not going for 6 runs. And tennis ball cricket is about entertainment. Cricket is about entertainment. Everyone wants to hit sixes. People wants to see sixes, and that's why the organizers are also understanding, and they have done the corrections. And that's the best part. They have improvised themselves. They have got this biggest of this tournament, and people here are expecting some sixes, and they have certainly improved on what happened from yesterday. समय के साथ चलना बहुत ही ज़रूरी होता है वैसे तो। अच्छा रन रेट ये माना जा सकता है, 10 के थोड़ा ऊपर है इस समय करंट रन रेट, और इसी रफ्तार से भी चलेंगे तो 80 प्लस तो बन जाएंगे। विकेटें हाथ में है, 9 विकेटें हैं हरीश। मुझे लगता है कि यहाँ से कम 40-45 के बारे में सोच रहे होंगे बल्लेबाज। 90 प्लस टोटल बन जाता है तो उसको चेस करना निश्चित रूप से थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। जगह बनाई, इस बार स्मैश कर दिया है गेंद हवा में, बहुत बड़ा गैप उधर और गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। Well, that was short, that was wide. There are only 2 men in the deep, one in the extra cover, one at wide, long on or maybe covers region. So ample of open spaces, and with only 1 wicket down and 2 overs left after this one, the license is there for the batsman to go all out. उछाल लेती हुई गेंद थी और ऐसे लगता है कि इनको गेंद जो है वो अब फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। तुषार रणदीवे, ओहो इस बार फुल टॉस स्विच हिट किया है और स्वीट हिट भी है, टाइमिंग लाजवाब। इस बार 6 रन। Well, Ajay, if you see, this is the 3rd 6 of this innings, and all 3 sixes have come a full toss. Although it was a switch hit, very nicely played. We have seen many of the players, many of the batsmen who are highly rated play this switch hit wonderfully well. And this is also one of the instances where batsman Tushar scoring a 6 in the form of a switch hit. देखते ही देखते 42 पर पहुंच चुके हैं तुषार रणदीवे।
ज़बरदस्त पारी खेलते हुए, और ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है मेरे ख्याल से। हालांकि अभी तक बहुत अधिक क्रिकेट तो नहीं हुआ है, केवल दूसरा ही दिन है इस टूर्नामेंट का। इस बार जगह बनाई है, हवा में खेला है, फिर से गैप ढूंढने में कामयाब, कम से कम यहाँ पर 2 रन तो लेना चाहेंगे। पलटे है और आसानी के साथ 2 रन पूरे। बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। हवा में भी जब खेल रहे हैं तो मेक श्योर कर रहे हैं कि फील्डर से थोड़ा दूर खेले, या फिर टाइमिंग इतनी बढ़िया उनकी देखने को मिल रही है कि गेंद सीधे मैदान के बाहर जा रही है। और जैसे आपने जिक्र किया कि फुल टॉस गेंदों पर बड़ी शॉट्स देखने को मिले हैं, इसका मतलब यह है कि गेंदबाज भी कहीं ना कहीं अपने मार्क से चूक गए हैं। दिवेश, बढ़िया गेंद इस बार, अच्छा उछाल, खांदी का जोर लगाया था। स्पेयर लेग अंपायर की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं बल्लेबाज, शायद वाइड की उम्मीद कर रहे थे। 44 पर नाबाद, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी रन्स बनाए हैं। पारी को जिस तरह से पेश किया गया है वो काबिल तारीफ है। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में बची हुई है, और इस बार कड़क शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के पास, कोई गलती नहीं, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। बढ़िया कैच, एक बेहतरीन पारी का अंत होता हुआ। Well, that was a lovely innings here, and with so many balls left, I think it was a right approach to go after the bowling. There is no point. Whatever the balls in the slot or not in the slot, short balls. This is tennis ball cricket at its best. Some of the best players in India, all the best players in India are playing here, and you can expect some good shots. And he was also trying to go for a 6 one more time. Did come right, and the score at the moment is 63 for the loss of 2 wickets. संभवतः जहां पर बल्लेबाज खेलना चाह रहे थे वहां खेल नहीं पाए। खासतौर पर जब आड़े बैट से पुल शॉट खासतौर पर जब खेला जाता है तो हम आमतौर पर देखते हैं कि स्क्वायर लेग की दिशा में या फिर बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर वो शॉट्स ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पर सामने खेलने का प्रयास हुआ। जीत पटेल बहुत अच्छे फील्डर, 2 विकेट्स गिरे हैं, दोनों भी बल्लेबाजों के कैच जीतने लपके हैं। 63 पर 2 इस समय ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग। Well, Ajay, if you think yesterday's match and consider the analysis, 75, 70 was a good enough total. But we need to see when the boundaries are shortened, sixes are coming, the boundaries are coming, excitement, entertainment is up on the second day as well. So I guess the required target which the bowling team will think is somewhere 10 to 15 runs more than considering what happened yesterday. आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बाउंड्रीज को थोड़ा सा छोटा किया गया है, जिस वजह से गेंदबाजों का काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने का प्रयास नए बैट्समैन संभाजी अर्थात बबलू पाटिल उछाल लेती हुई गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, चूक गए, और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ। थोड़ा खर्चीला ओवर ज़रूर रहा, खासतौर पर शुरुआत निराशाजनक रही थी। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद छक्का, और पहली 3 गेंदों पर 12 रन आए थे, लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी रही तांडेल की। 6 ओवर्स का खेल यहाँ पर पूरा होता हुआ, रन संख्या 63 पर 2। Yes, I think that was a good comeback from Divesh Tandel. First 3 balls went for 12 runs. It's not easy for the bowlers because 12 runs in first 3 balls, you are almost in the pressure that the batsman can score you 4s and 6s in the next 3, and the over might be very costly. But he makes a good comeback. The last 3 balls were dot balls on, also taken a wicket, and that is a crucial wicket of Tushar at the right time. And he was the man, well set, playing on 44 of just 23 balls. और सेट बल्लेबाज का ऐसे समय में आउट होना खतरे से खाली नहीं होता है। हमने देखा है यहाँ पर विकेट्स गिरने के बाद लगातार विकेट्स गिरते हुए 8 ओवर्स में कल कई टीमें रन्स बना नहीं पाई अच्छी शुरुआत के बाद। तो सेट बैट्समैन का क्रीज पर टिके रहना बहुत ज़रूरी होता है 8 ओवर्स में, खास तौर पर नए बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुश्किल रहा है यहाँ पर आते ही बड़े शॉट्स खेलना। नेवर लेकर जीत पटेल, इसी की मैं चर्चा कर रहा था। तुषार रणदीवे जब खेल रहे थे वो तो स्विच हिट भी बढ़िया तरीके से जमा रहे थे, लेकिन अब नए बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। Switch hit, the intention should not be made clear to the bowler. You should make it at the last moment. You should have the fast hands and the fast movement. If you
present yourself to the batsman that yes, I am going for the switch, then it's easy for the bowler to change his line. क्लीन बॉल्ड, लाजवाब गेंद, बहुत ज्यादा क्रॉस जाकर खेलने का प्रयास वहां पर पूरी तरह से चूक गए, गेंद अंदर आई और डंडा बाहर। Problem with this is, look at this scenario. Yesterday itself also we have seen the top two players or maybe one down player were batting very well. They had a partnership. Then comes the middle order batsman, and whatever the work, the job done by the openers was given away. None of these middle order batsmen played a good innings yesterday, apart from the top order, and that's the reason why a good total was not being posted. Now you can see Shambhaji here, he came and played 3 dot balls. Instead of that, if you could have taken single or doubles, things could have been much better. Everyone is trying for big shots while coming. It's not easy. Sometimes you have to get yourself set. Maybe a single, maybe a double. Just a movement of the legs going from the striker's end towards the non-striker's end. आते ही बड़े स्ट्रोक की कोशिश, जिसके चलते बल्लेबाज आउट हुए और ज़्यादा इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने का प्रयास किया। गेंद के मेरिट पर बल्लेबाजी करने की कोशिश नहीं हुई। बैट्समैन आसिफ आए, अच्छा शॉट, सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन मिलेगा यहाँ पर बैट्समैन को। खाता खुलता हुआ आसिफ का। 2 नए बल्लेबाज है क्रीज पर। बबलू पाटिल ने कल बहुत बढ़िया पारी खेली थी और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस तरह से बल्लेबाजी की थी उन्होंने, वो अपनी टीम को जिताना डिजर्व कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य बल्लेबाजों का साथ मिला नहीं था। टेलेंडर्स के साथ उन्होंने मिलकर कोशिश की थी और अकेले हाथों एक समय ऐसे लग रहा था कि अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो 5 रन से मैच हार गए थे। This is the 7th over, just 9 balls left after this one. Considering the score at the moment, 64, apart from the start given, I think they should get somewhere around 75-80. बढ़िया शॉट इस बार, बॉलर बैक पास ड्राइव। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी बहुत ही सतर्क, जबरदस्त फील्डिंग। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया वहां पर फील्डर ने गेंद की तरफ पहुंचने के लिए, और उनको पता था कि थोड़ा भी विलंब करेंगे तो ये बाउंड्री बन सकती है। एक ही रन लेने का मौका। क्रीज के बिल्कुल कोने से गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बैट्समैन के सामने एंगल का इस्तेमाल किया जा रहा है। This, in fact, is also a great experience for all the players here. Not only, I'll come to that point later. फिर से फुलर लेंथ, फिर से सामने खेलने पर मजबूर किया है। Singles at this moment, I think bowling side will be very happy. It's just that the boundaries and the sixes has to be stopped by them. They want to stop the juggernaut. They want to stop the onslaught. Singles at this moment, I don't think so they'll be bothered about it. जी हाँ, यहाँ से बाउंड्रीज आएंगी तो ही एक बहुत बड़ा टोटल बनाया जा सकता है, नहीं तो फिर कुछ उस तरह का टोटल रहेगा जो चेसेबल होगा, और मोमेंटम कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि फिर विपक्षी टीम के पास जा सकता है यदि इन बची हुई गेंदों पर बाउंड्रीज बल्लेबाज अर्जित नहीं कर पाते हैं तो। मात्र 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पारी में। इस बार खोद कर निकालना पड़ा है। बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी की जा रही है। सामने फील्डर्स रखे गए हैं और उनके ही दिशा में गेंदें जा रही है। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। फुल एंड स्ट्रेट गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ जीत पटेल का। उनका स्पेल भी समाप्त हुआ, 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट, और 7 ओवर के पश्चात ग्लोब लिंक वेस्टार का स्कोर है 67 पर 3। Yes, I think it's a lovely piece of bowling, and just giving 4 runs in that penultimate over. I think we have seen few times in yesterday's matches that 6th, 7th, or 8th over the sides have done well, and then they went on to chase. So this is a very good bowling right now at the death here by Jeet and the bowlers of Valsad Strikers. But Globe Link West Shipping will be thinking, yes, this is the last over. Can we get somewhere around 10 to 15 runs, which will get us to 80 plus total? So 80 will be there in the mind considering the start that was given. But what a feel, what an atmosphere.
The aura here is so electrifying. It's so wonderful. When you see the bowler running up to the crease from the bowling mark, you can see the carpets there, the carpets from the bowling mark. That gives a feeling that this is almost international level. The IPL, the World Cup, the international, one-day international is being played here. And what feeling they must be getting that they are being given so much of facilities, so much of environment to get a feel that tennis cricket is somewhere at a different level. This is the highest level that I have witnessed. I think this is the highest level they must have witnessed in their careers as well. ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी जो एंजॉय कर रहे हैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट, वो भी यही सोच रहे होंगे कि हम इंटरनेशनल मुकाबला ही देख रहे हैं। जिस तरह से इस टूर्नामेंट को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, टेलीकास्ट किया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत हाई डेफिनेशन कैमरास का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर 22 कैमराज जिनसे ये टूर्नामेंट कवर किया जा रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है टेनिस क्रिकेट खेल के इतिहास में। आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अब साकिर अजमेर एक और लेफ्ट आर्मर दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत करते हुए, ओहो नो बॉल है, नो बॉल का इशारा। रिटर्न क्रीज के भी बाहर गेंद पिच हुई है। जी हाँ, Yes, it has pitched outside, and that's why umpire was very firm. First ball. नो बॉल कोई भी क्यों ना हो, फ्री हिट मिलता है। फ्री हिट था लेकिन बढ़िया वापसी। आगे रखी हुई गेंद, बबलू पाटिल उस गेंद के लाइन में ठीक तरह से पहुंच नहीं पाए। अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे खेलना चाहिए था, लेकिन अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। No, I think the credit should be given to the bowler there. That's a perfect length, perfect line, just outside. Yorker length delivery. Batsman hoping that he will be bowling the straighter ball. It was not bowled. So smart piece of bowling here from the bowler. White ball. और ये क्या लेग स्टंप के बाहर है? जी हाँ, ये वाइट का इशारा अंपायर ने किया है। एक अलग अदाकारी लेकर आते हैं अंपायर मोहम्मद रफी टेनिस क्रिकेट खेल के। ये बिली बाउडन, Yes, who doesn't remember Billy Bowden? He was so vocal with his steps, wonderful umpiring as well, and a different style. Everyone like different style, a different aura, different feel, different action. 2003 के विश्व कप में वो काफी चर्चा में आए थे। इस बार बहुत ही सुंदर ड्राइव और वहां पर फील्डर मौजूद है डीप कवर में, बल्कि के बीचों बीच लेकर खेले थे, लेकिन क्या नहीं ढूंढ पाए। और इस तरह से सिंगल्स गेंदबाज को कोई समस्या नहीं है। हालांकि इस ओवर में 2 अतिरिक्त गेंदें कर चुके हैं साकिर। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 70, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब मात्र 4 गेंदें बची हुई है। 5 ओवर्स तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही थी, लेकिन पहला विकेट जैसे ही गिरा उसके बाद गेंदबाज थोड़े हावी रहे हैं। That was the same scenario. I think the team should understand by now. One of the players should play at the 8 overs. Otherwise, it's going to be very, very difficult on this grassy wicket for the new batsmen to get themselves set and get those big bounties and sixes. स्विंग एंड मिस अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, हल्की सी अंदर की तरफ आई गेंद, टप्पा फटने के बाद बढ़िया गेंदबाजी शायद के बल्लेबाज के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ, काफी हद तक गेंद अंदर की तरफ कटी है। How many left arm medium pacers we have seen in this tournament? I think more than the right arm pacers. I think so. All the sides, some sides even have 3 or 4. और कम से कम 2 तो लेकर आए हैं। इस बार बढ़िया शॉट है, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग। जीत पटेल लाइव वायर है ये फील्डिंग में। Jeet is absolutely a live wire, and I think we should give credit to the captain as well. He has kept the right fielders on the boundary edges so that they are quick, stopping those boundaries, stopping those 2s, 3s. गति परिवर्तन बहुत जल्दी भाप नहीं पाए थे, आखिरकार स्वीप किया है। उसको 2 रन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। दोनों भी गाड़ियाँ एक ही पटरी पर, और ऐसे में तो एक्सीडेंट होने वाला है। बल्लेबाज भी अपील कर रहे हैं। नहीं पटक दिया, सर को पूछो पटक दिया क्या? तो ये बता रहे हैं वहां पर अंपायर को कि बेल हाथ में रखी है गेंदबाज ने। देखना है कि कंफर्मेशन क्या आता है अंपायर की ओर से।
एक मिनट थर्ड अंपायर लो गिरायचं सुबह सुबह दर्शक यहाँ पर पहुंचे हैं खेल का लुत्फ उठाने के लिए लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। उनसे पूछे बेल्स गिरायचं बल्लेबाज अभी भी रुके हुए हैं। Well, what do you think? The batsman is maybe asking a query here to the umpire, saying that the bowler did not remove the bails, and by the time I had bat grounded inside the popping crease, and umpire is saying, I am very much sure that he has taken the bails by removing from the grooves, and given out. ये देखिए दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर थे, उसके बाद विकेट कीपर ने गेंद को लौटा दिया बॉलर के पास, और ये वो मसला था कि बेल निकाली हाथ में रखी है, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई। अंपायर ने तो आउट घोषित कर दिया, बल्लेबाज रुके भी हुए थे बबलू पाटिल, आखिरकार अंपायर ने जाने का इशारा कर ही दिया उनको एक बार फिर से, और बल्लेबाज मैदान के बाहर। अंतिम गेंद इस पारी की शेष है। And Ajay, with 22 cameras, you cannot escape. No one can escape from 22 cameras. खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, बॉलर की दिशा में गेंद चली गई थी, रोक नहीं पाए, फॉलो थ्रू में मिसफील्ड हुआ है मिड ऑफ पर। एक एक्स्ट्रा रन तो बना लिया है बल्लेबाजों ने, एक और लेना चाहते हैं लेकिन अब की बार रन आउट। तो अंतिम गेंद पर आए हैं 2 रन। तो इस तरह से ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग की पारी समाप्त होती हुई। कुल रन संख्या 75 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर, और 76 रनों की चुनौती, जबरदस्त वापसी मैं समझता हूँ वलसाड स्ट्राइकर्स की ओर से। आखिर के 3 ओवर्स लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली है। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? Well, if you have a look at the यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। एनर्जी बोले तो स्टिंग। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज़्यादा refreshing. one's match, both the sides are in contest, and if they bowl well, I think GlobeLink West Shipping will be definitely in the race to win this match, and Valsad Strikers also will feel our batsman has to come right here. They need to give us a good start, and also the middle order, maybe 10-15 runs from the middle order can fetch us runs. जो एक लक्ष्य निर्धारित करके आए थे बल्लेबाज, शुरुआत तो इस हिसाब से ही हुई थी कि कहीं ना कहीं 90 के आसपास टोटल पोस्ट करना है, लेकिन अंतिम 2 ओवर्स में खासतौर पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी से बैट्समैन आउट होने के बाद रनों में गिरावट देखने को मिली। 76 का टारगेट है। आइए चलते अब अगले मैच के टॉस की तरफ, सीधे हमारे साथी कमेंटेटर हरीश पंडे के पास। धन्यवाद आपका समालोचन कक्ष। सुप्रभात મિત્રો, સુરત કેમ છે? ચા નાસ્તો થઈ ગયો હશે? જોડાઈ જાઓ 10PL सीजन 4 સાથે। આપ જોઈ રહ્યા છો skyexchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। दोस्तों, आज का दूसरा मुकाबला SJA शिपिंग और AB आजम वॉरियर्स के बीच अब शुरू होने जा रहा है, और उसका टॉस करने के लिए मैं दोनों कैप्टन से दरख्वास्त करूंगा हमारे साथ जुड़ जाएं। AB आजम वॉरियर्स मध्य प्रदेश, और उनका मुकाबला होने जा रहा है SJA शिपिंग। और ये मैच का टॉस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे तुषार भाई पटेल, जिन्होंने कल गुजरात टीम को कोच किया ट्रायंगुलर सीरीज में, 10PL की कमेटी के वो सदस्य भी हैं। और मुझे याद है जो दूसरा 10PL हुआ 2018 में, तब तुषार भाई और उनकी टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हुआ टिप टॉप अलायंस वो उस AB आजम वॉरियर्स and SJA shipping immediately report for the toss.
हेलो हेलो ये गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं तुषार भाई पटेल, एसजे शिपिंग के कैप्टन है सुमित डेकले और एबी आजम वॉरियर्स के हमारे एबी आजम। वी आर थैंकफुल टू आवर टाइटल स्पॉन्सर skyexchange.net powered by Petroman. We are also thankful to our beverages partner Pepsi. We are also thankful to our strategic timeout and official partner Akar Chain. We are thankful to our official partners Socos.io, Digibits. We are also thankful to all our other sponsors which includes Smart Chain. We are also thankful to our kitting partner UYP, Unleash Your Potential. And we are thankful to Made in India Pictures, our broadcaster aggregator. So Tushar Bhai will flip the coin. I will show you the coin. That's 10 PL और एक तरफ है पेट्रोमैन। आपको जो कॉल देना है या तो 10 PL या तो पेट्रोमैन। किसका कॉल रहेगा? आजम भाई का। 10 PL is the call and it is पेट्रोमैन। So सुमित, अभिनंदन, कल पहला मैच जीता आपने और ये मैच में आपका क्या डिसीजन रहेगा? थैंक यू सो मच। हमारे पास समय कम है। एसजे शिपिंग विल बैट एंड एबी आजम वॉरियर्स विल बोल। लेट्स गो लाइव फॉर द कमेंट्री। थैंक यू। धन्यवाद हरीश। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं 10 PL की वर्ल्ड टेनिस दुनिया में बहुत ही सुहानी सुबह आज 10 PL में 10 PL को प्रेजेंट किया है स्काई एक्सचेंज डॉट ने और पावर्ड बाय पेट्रोमान। मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ एवरेज पार्टनर पेप्सी, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट ऑफिशियल पार्टनर आकार चैन, ऑफिशियल पार्टनर Socos.io, Smart Chain and Digibit. Hitting partners UYP, unless your potential broadcast made in India picture. इन सभी का विशेष धन्यवाद। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर 76 का लक्ष्य। पहली गेंद फॉलिंग स्वीप, सोते हुए गेंद को खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या जबरदस्त मिजाज में आपने एक चीज देखी, करारा जवाब मिलेगा। पहली इनिंग की पहली बॉल पे फॉलिंग स्वीप तुषार रणदीवे और ठीक उसी की जेरोक्स कॉपी, सिर्फ फर्क है वो राइटी थे, ये लेफ्टी थे। रिजल्ट वही है, 4। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया आसमान में, मिस टाइम स्ट्रोक है। गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक तुम्हारी एक हमारी, चलता कर दिया वहां पर बैट्समैन चिराग पटेल को। पहला झटका लगता हुआ। स्ट्राइकर के पहले स्ट्राइकर बैक टू द डगआउट। 76 का लक्ष्य है और सुबह के सत्र को हम देखते हैं तो हल्की जो नमी थी वो अब सूख चुकी है क्योंकि सूरज आबोताब से चमक रहा है। और पहला झटका लगा है नए बैट्समैन इस वक्त डगआउट से नमूदार होते हुए। बहुत अच्छी गेंद थी वहां पर विशाल निगोट की। कल टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में जहां दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली और एसजे रादर ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग का जो मुकाबला था, उसमें हमने देखा प्रारंभिक दोनों गेंदबाज विशाल निगोट और निहाल तुसामत, इन्होंने
ऐसी कहर बरपाती हुई गेंदबाजी की कि एक स्टेज था दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली का, 13 पे 4 का स्कोर था। बिल्कुल वही वाली शुरुआत यहाँ पर ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग के लिए इस मैच में होती हुई, और जो कैच लिया अविनाश रामगुड़े ने, स्वयं विकेट कीपर है, एक अच्छा विकेट कीपर अपनी जगह से पॉइंट और स्क्वायर लेग तक का जो इलाका है वो कवर करता है, और अविनाश रामगुड़े ने वही काम किया और वहां पर कैच लेकर बाहर किया चिराग पटेल को। नए बैट्समैन नदीम दीवान आए बल्लेबाजी के लिए। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बार वाइड, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 5 पे पहुंचा है। वलसाड स्ट्राइकर का 76 रनों का पीछा कर रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टेनिस दुनिया का वर्ल्ड कप 10 PL। फिर ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बार, लगातार 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं गेंदबाज। ये गेंद वाइड नहीं थी। विशाल निगोड गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं नदीम दीवान। नॉन स्ट्राइक पर हितेश पटेल हैं, आउट होके चले गए चिराग पटेल। नॉर्थ एंड से मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा बेहतरीन पुश, बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर हल्के हाथों से गेंद को कवच में खेलते हुए 1 रन। स्टाइलिश शॉट, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ वलसाड स्ट्राइकर का पहुंचा है 6 रन बिना किसी विकेट के। 76 के लक्ष्य का पीछा कर रही है, और ये पहला मुकाबला आज के दिन का चलता हुआ वलसाड स्ट्राइकर और ग्लोब लिंक स्टार शिपिंग कॉरपोरेशन के बीच में। अच्छा बॉलिंग एक्शन है। इस मरतबा फिर से फॉलिंग स्वीप की कोशिश, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद। विशाल निगोड एक अच्छी लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कल जो उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए 2 विकेटें ली थी, और वही फॉर्म को वो आज बरकरार रखना चाहेंगे। पहले ओवर में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, पहली गेंद पर चौका जरूर खाया, लेकिन उसके बाद चौकन ना हो गए, ये अच्छी बात है। विशाल निगोड रिवर्स शॉट खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में ट्रैवल हो रही है, गेंद अब जाकर रुकी है। इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। कमाल का शॉट खेला था, और हरी घास पे सुबह सुबह गेंद आग लगाती हुई पहुंची थी डीप कवर पॉइंट पे। 2 रन से हितेश पटेल का खाता खुलता हुआ P1 पावर प्ले 1 का खेल समाप्त हो चुका है। 76 के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम 8 रन 1 विकेट। हरीश क्या कहेंगे पहले पावर प्ले की समाप्ति के बाद? देखिए, दोनों पारियों को अगर हम देखें तो मैच की पहली पारी के पहले पावर प्ले के ओवर में 9 रन आए थे, जिसके जवाब में 8 रन आए हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी पारी में 1 विकेट गिरा है। तो ये सबसे बड़ा फर्क नजर आया। अभी भी खेल में हम थोड़ा जल्दी हैं, मेरे ख्याल से चौथा ओवर आते आते चित्र जो थोड़ा धुंधला है वो साफ होगा। इस वक्त निहाल तुसामत और विशाल निगोड, ये जो 2 उनके बेहतरीन गेंदबाज है, वो किस तरह गेंदबाजी करेंगे, उनके पास जो बॉलिंग ऑप्शंस है वो ऑप्शंस को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। कैप्टन तुषार रणदीवे स्वयं बॉलिंग कर सकते हैं, अविनाश रामगुड़े गेंदबाजी कर सकते हैं, तो जो अन्य विकल्प हैं उनको भी खोजा जाएगा। लेकिन इस वक्त वलसाड स्ट्राइकर्स के लिए स्ट्राइक करना ये लाजमी होगा, क्योंकि पावर प्ले का ये दूसरा और अंतिम ओवर शुरू होने जा रहा है। यस, निहाल तुसामत को गेंदबाजी दी गई है। पहली गेंद बहुत दूर से खेलने की कोशिश, गेंद विकेटों के पीछे ज्यादा जाके स्विंग हुई थी। हालांकि कट शॉट जरूर करना चाहते थे बैट्समैन। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं निहाल तुसामत। कल जो बाउंस उन्हें मिला था वही बाउंस आज भी मिल रहा है। निहाल तुसामत
स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद आगे रखा था, लेंथ गेंद थी और विकेटों के ऊपर से चली गई डॉट गेंद। नदीम दीवान अपने शॉट्स को टाइम नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद, जस्ट ओवर दी स्टंप। स्विच हिट करने का एक नाकामयाब प्रयास और दीवान को अपने ऊपर काबू रखकर खेलना होगा। कदमों का इस्तेमाल, लेंथ को खींच लिया ये देखते हुए कि बैट्समैन निकल के मारना चाहते हैं। क्या बॉलिंग कर रहे हैं निहाल खुशामद। देखिए एक जमाना था जब दीवाने आम और दीवाने खास की बातें हुआ करती थी और इस वक्त ये जो 22 यार्ड का पिच है वो दीवान साहब के लिए दीवाने आम और दीवाने खास दोनों बना दिया है निहाल खुशामद ने और उनको आराम फरमाने के लिए कह रहे हैं। देखिए दीवान को दीवाना बना दिया इस ओवर में। इस मर्तबा जबरदस्त गेंद, बाउंसर बिल्कुल कान के पास से जाती हुई गुड मॉर्निंग कहती हुई बल्लेबाज दीवान को 1 फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर करते हुए कि आप बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए कप्तान को खुशामद की खुशामद करने की जरूरत नहीं, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की। और सबसे बड़ी बात है लगभग उम्र के 20वें 21वें साल के हैं और बहुत कम उम्र में उन्होंने पिछले 6 महीने में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है और नवंबर महीने से वो भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य पर उभर कर आते हुए नजर आ रहे हैं। 6 महीने उनके लिए बहुत अच्छे रहे। निहाल खुशामद, फिर कदमों का इस्तेमाल, फिर राइजिंग गेंद, राइजिंग एंड सरप्राइजिंग गेंद। क्या मेडन ओवर हम देखने जा रहे हैं। जबरदस्त कंट्रोल, गेंद का टप्पा, उसकी दिशा, उसकी गति, तीनों को अपना गुलाम बनाकर रखा है और परफेक्ट पिचिंग। खुशामद मुड़ते हुए दीवान को इस मर्तबा उछाल दिया गेंद को इनफील्ड के ऊपर से, फील्डर नीचे, जगलिंग जगलिंग एंड ड्रॉप। मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर, क्या बॉलिंग की है, कातिलाना गेंदबाजी। इस ओवर के बारे में जरूर हरीश आपसे सुनना चाहूंगा। देखिए पहली पारी में पावर प्ले के 2 ओवर में 18 रन बने थे, कोई विकेट नहीं गिरा था। उसके बनिस्बत केवल 9 रन और 1 विकेट, केवल 1 रन का ओवर, कम खर्चा, फुल चर्चा, इस तरह की गेंदबाजी। और वाकई में निहाल खुशामद ने ऐसा कहते हैं ना कि अगर जो बोले सो निहाल तो फिर आपकी टीम हो जाए खुशहाल। बिल्कुल निहाल ने अपनी टीम को खुशहाल किया है और इस तरह की गेंदबाजी कल भी हमने देखी थी विशाल निगोट और निहाल खुशामद, और कल जो सिद्दीक भाई उनकी गेंदबाजी में पहनापन था, जो धार थी, वो आज भी कायम है, जो बताती है कि उनके खेल में निरंतरता है। बिल्कुल कम खर्चा और फुल चर्चा, जबकि 10 PL फुल चर्चा और फुल खर्चा। मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना, हर कोई है इसका exchange.net का दीवाना, हर कोई है पेट्रोमन का दीवाना, हर कोई है पेप्सी का दीवाना। इस मर्तबा आड़े बल्ले से इतने दूर से शॉट खेला था तो एलिवेशन कहाँ बनेगा। गेंद लुढ़क कर पहुंची मिड विकेट पर 1 रन। नहीं देखिए जिस तरह पेप्सी के हर घूंट में स्वैग है, स्वैग वाली बल्लेबाजी अगर देखें तो कल शकीर काकू का जो स्वैग था ये अभी भी मतलब ताजगी दे रहा है और ऐसा स्वैग यहाँ पर दीवान साहब को या उनके पार्टनर को दिखाना पड़ेगा। नदीम दीवान ने काफी डॉट गेंदें खेली। इस मरतबा कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर पहले बाउंस पे गेंद पहुंची, शॉर्ट वाइडिश थर्डमैन पर 1 रन। रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस वक्त, जहाँ तक ताल्लुक है वलसाड स्ट्राइकर का। कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं आया है जो खुल के स्ट्राइक करे। विशाल इस मरतबा फिर गेंद ने काटा बदला, लगातार आरे बल्ले से खेलने की कोशिश हो रही है और इस तरह के विकेट पे और इस तरह के बाउंसी विकेट पे हरेश आरे बल्ले से खेलना मानो सहरा में पानी तलाश करना हो।
और देखिए गेंदों को पिचअप कराना, चैनल में रखना और उसके एंगल को नियंत्रण रखना, ये तीन बातें विशाल निगोट की गेंदबाजी में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर वलसाड स्ट्राइकर्स जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है इस वक्त रनों के मामले में। कमाल की बॉलिंग हो रही है, आगे रखा था, बहुत ही खूबसूरत ऑन ड्राइव, लेकिन पीछे खिलाड़ी हैं। एक रन से केवल 12 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। 76 के रनों का पीछा कर रही है वलसाड स्ट्राइकर्स। ग्लोब लिंक स्टार शिपिंग ने 76 का लक्ष्य रखा है। The target is 76 in front of Valsad striker. विशाल निगोट स्लाइस करने की कोशिश, एज एंड गॉन। सबसे बड़ी बात सिद्दीक भाई, आप गौर करेंगे एक्शन रिप्ले में, जैसे ही बैटर को उसका ट्रिगर मूवमेंट करते हुए देखा, विशाल निगोट ने अपनी गेंदबाजी की शैली को बदला और जो स्लॉग स्वीप के लिए बैटर तैयार हो रहा था उसके लिए शॉट को खेलना ये लाजमी बन गया। और बल्ले का मोटा सीरा लेती हुई बॉल अविनाश रामगुड़े के हाथों में कैद हुई। अविनाश रामगुड़े दोनों ही विकेटों में योगदान देते हुए नजर आए, दोनों कैचेस उनके खाते में गए। देखिए किस तरह आधे अधूरे मन से पहले ट्रिगर किया और उसके बाद में जो शॉट के लिए वो मुड़े और विशाल निगोट ने उनके शरीर की हिलचाल को पढ़ लिया और आउट कर दिया। बहुत बढ़िया कैच विकेटों के पीछे, क्योंकि लगभग फर्स्ट स्लिप के सामने था। चेयरमैन ऑफ 10PL आरिफ सर साहब को देखा जा सकता है। हमारे एक सेलिब्रिटी के साथ उनका भी हार्दिक स्वागत है। देखिए सबसे बड़ी बात आपने कही, आधा अधूरा शॉट, आधा अधूरा शॉट हो, आधा अधूरा ज्ञान हो, नॉलेज हो, या आधा अधूरा प्यार हो, ये तमाम नाकामी की निशानी है। नाकाम हो गए बल्लेबाज। बॉलिंग बहुत लाजवाब हो रही है और पावर प्ले में बल्लेबाज पावरफुल बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। निगोट मुड़ते हुए वो बढ़िया गेंद आने दिया था, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, सीने के करीब लगभग गेंद थी। 1 रन। नए बैट्समैन जीत पटेल आए हैं बल्लेबाजी को, जबकि जीत के लिए 76 का लक्ष्य। 3 ओवर की समाप्ति, 13 रन, पिछड़ती हुई बारी वलसाड स्ट्राइकर्स। एक बार फिर से हम कंपैरिजन को अगर देखें, पहली पारी में 3 ओवर के बाद स्कोर था 23, कोई विकेट नहीं गिरा था, जिसके जवाब में दूसरी पारी में 3 ओवर में 13 रन और 2 विकेट। ये बड़ा फर्क है, 10 रन ज्यादा भी बने और कोई विकेट भी नहीं गिरा। अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट के कल के मैचेस की तरफ रुख करें, जो 2 मैचेस हुए, SJA शिपिंग को अगर छोड़े तो जो बाकी तीनों टीमें रही थी, रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, SJA शिपिंग और इसके अलावा कल जो आपने ग्लोबलिंग वेस्टर शिपिंग 3 टीमों को देखा था, उनकी शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाती हुई रही थी। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोई नई टीम अपना पहला मैच खेल रही है, मैदान की परिस्थितियों से अवगत होने में उसको थोड़ा समय लग रहा है। ये भी एक ट्रेंड उभर कर आ रहा है। जब आप पहला मैच खेलते हैं उससे आप सीखते हैं, समझते हैं, मैदान के डायमेंशंस को आप पढ़ लेते हैं और फिर दूसरे मैच में अच्छा खेलने का प्रयास करते हैं। सो मेरे ख्याल से वलसाड स्ट्राइकर्स ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया है, लेकिन जो दूसरा लीग मैच आएगा उसमें वलसाड जो है ये वापसी करेगी। यस, लेकिन इस वक्त वलसाड स्ट्राइकर्स जो टीम है वलसाड पैसेंजर की तरह स्लो चल रही है। देखिए निहाल को कंटिन्यू रखा गया है, बहुत अच्छी कप्तानी, फिर गेंद बाहर की जानिब काटा बदलती हुई। सबसे बड़ी बात है कि निहाल ने जो पिचअप रखा है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा है, गुड लेन पे गेंदों को रखा है और कंधे के जोर से गेंदें राइज भी हुई है, इसलिए बल्लेबाज को राइजिंग और सरप्राइजिंग गेंदों का सामना करना पड़ रहा है। निहाल तुशामत फिर से बाहर निकलती हुई गेंद, क्या आप बॉलिंग कर रहे हैं निहाल तुशामत? इट हैज बीन अ ब्रिलियंट फास्ट बॉलिंग। बहुत अच्छा गेंद के ऊपर का नियंत्रण, पिच, ये जो पिच है हमने देखा गेंदबाजों के लिए मुफीद है। कल हमने ट्रायंगुलर सीरीज में 2 बॉलर्स को जॉइंटली मैन ऑफ द सीरीज जीतते हुए देखा। इस मरतबा गेंद हवा में और सॉफ्ट डिसमिसल।
9 गेंदों में केवल 1 रन दिया है और 1 विकेट लिया है। कहते हैं हरीश ये तो होना ही था, 9 गेंदे आपने किए और 1 रन दिया है, इससे अच्छी इकोनॉमिकल गेंदबाजी क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि विशाल निगोट एक छोर से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जब एक छोर का गेंदबाज अच्छी बॉलिंग करे तो दूसरे छोर का जो दबाव है आपो आप बन जाता है, और जब दोनों तरफ से दबाव बढ़ जाए तो फिर वहां पर क्या हो सकता है हमने देखा। और स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, अपने विकेट को तोहफे में दिया। निहाल तुसामत की भी तारीफ करूंगा, अपने फॉलो थ्रू में आगे चले गए। मध्यम तेज गति गेंदबाज है, इसलिए उनकी टांगों में वो स्फूर्ति भी देखने मिली, और गिरने वाले तीनों विकेट कैच आउट के रूप में और तीनों कैचेस कन्वर्ट हुए हैं, ये अच्छी बात है ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग के लिए। धीरे धीरे वलसाड स्ट्राइकर्स के लिए मैच मुअम्मा बनता हुआ, क्योंकि रन ही नहीं बन रहे। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की अभी तक निहाल तुशामत ने। गुडलेन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, बल्लेबाजों को मजबूर किया है बैकफुट पे। एक और खूबसूरत गेंद, अपील कॉट बिहाइंड की, एक और विकेट। व्हाट अ बॉल। हरीश, क्या 10 की सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग हम देखने जा रहे हैं? 10 गेंदे, 1 रन और 2 विकेट। स्नॉटर, बिल्कुल इस तरह की गेंदों को अंग्रेजी में स्नॉटर कहा जाता है। इसको खेलना मतलब लगभग मुश्किल सा। बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग भी नहीं कर पा रहे थे, और उतने में बॉल मोटा सीरा लेते हुए अविनाश रामगुड़े के हाथों में सेटल होती हुई, इसको कहते हैं गेंदबाजी। मतलब अगर जो युवा गेंदबाज 14वें 16वें 18वें साल में है, टेनिस क्रिकेट अडॉप्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से निहाल तुसामत उनका रोल मॉडल ऑलरेडी बन चुका है। ही इज द स्पीड सेंसेशन ऑफ इंडिया। आज जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, 10 बॉल में अगर आप केवल 1 रन देते हैं और 2 विकेट लेते हैं, तो इससे कंजूस तो मुझे नहीं लगता दुनिया में और कोई चीज हो सकती है। बिल्कुल, एनपीएल की अभी तक की सबसे अच्छी बॉलिंग हम देख रहे हैं। निहाल हैट्रिक गेंद है, और अब तक कोई हैट्रिक एनपीएल में नहीं हुआ है। क्या सुबह सुबह फर्स्ट हैट्रिक हम देखने जा रहे हैं? हैट्रिक गेंद के साथ मुड़ते हुए, ओह बढ़िया गेंद, लेकिन इस मर्तबा एतमाद से टर्न किया, गेंद को आने दिया तो ऑफ हिप्स 1 रन। देखिए, आपने जिक्र किया बल्लेबाज गेंद छोड़ना चाहते थे। कपिल देव ने जब डेब्यू किया और पाकिस्तान के सामने गए, लाहौर में जब 43 रन देकर 8 विकेटें ली थी कपिल देव ने, मुझे याद है जहीर अब्बास ने उस गेंद को छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सीरा लेकर विकेट कीपर किरमानी के हाथ में कैद हो गई थी। कमेंटेटर्स ने कहा था कि डिलीवरी ऑफ द टेस्ट मैच। पल्लू शॉट खेलने की कोशिश, स्कूप करना चाहते थे। ओवर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता हुआ आकार चैन। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने इस वक्त केवल 14। क्या होनी को अनहोनी में बदल देंगी? चलते हैं 10 PL में हमारी अगली कमेंट्री जोड़ी की तरफ। यस, आपके साथ रहेंगे मैच, इस मैच की समाप्ति तक उसामा और अभिषेक, यंग जोड़ी आपके साथ। थैंक यू सो मच सर
एक बार फिर से skyexchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, सब लोगों का भी, पार्टनर जितने भी इनके स्पॉन्सर हैं, पेप्सी का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। आकार चेन जो कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑफिशियल पार्टनर है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिशियल पार्टनर में और भी है SoCoach.io, स्मार्ट चेन, किडिंग पार्टनर UYP, अनलिस योर पोटेंशियल, और मेड इन इंडिया पिक्चर्स, ये ब्रॉडकास्ट पार्टनर, और भी जितने सारे लोग हैं सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और अब यहाँ से हम देखेंगे कि 4 ओवर में अब इसको कैसे चेज कर पाती है, क्योंकि आसान रहेगा नहीं। 4 ओवर में 14 रन है 4 विकेट के नुकसान पर, और आपको चेज करना है कुल मिलाकर 76। तो अब यहाँ से हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में हम दो यंग, एक तरफ मैं अभिषेक शानू और हमारे साथ ओसामा। आइए, स्वागत है आपका। जी हाँ, जैसे ही हमने प्रवेश किया कमेंट्री बॉक्स में, वहां पर एक और झटका लगता हुआ 5वीं सफलता प्राप्त की है यहाँ ग्लोब लिंक वेस्ट शिपिंग स्टार्स ने। आप कमेंट्री बॉक्स में प्रवेश क्या किए, बल्लेबाज पवेलियन की तरफ प्रवेश कर गए। चलिए अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, आगे के मैच में क्या हैपनिंग रहता है। फिलहाल अच्छा क्रिकेट चलता हुआ सूरत का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम गवाही देता हुआ इस खूबसूरत से दृश्य का, ये जो आप सब लगातार लुत्फ उठा रहे हैं। तकरीबन लाखों लाख की संख्या में व्यूअर्स, दर्शक हमारे साथ जुड़े। अभी तक जिस तरह से इन्होंने हौसला अफजाई किया, इन क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाया, ये बहुत खास बात है। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस मैच के ऊपर। वलसाड स्ट्राइकर्स की टीम ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और उनके सामने ग्लोब लिंक की टीम अब कैसे यहाँ पे लड़ेगी, लड़ती हुई लगातार नजर आ रही है। लेकिन अभी तक बहुत शानदार तरीके से क्रिकेट पड़ा है। इस बार एक मौका है, दस्तूर भी है, खेलना चाह रहे थे लेकिन लपके गए। इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद थे किसी भी तरह के संभावित कैच के लिए, और वही कुछ हुआ। ठिकाना देखिए जब आप इनके गेंदबाजी करते वक्त इनको देखेंगे। यहाँ पूरी तरीके से लड़खड़ासी गई है यहाँ पर वलसाड स्ट्राइकर्स, क्योंकि 6 विकेटें अभी तक गिर चुकी हैं। आधी से ज्यादा टीम डगआउट में वापस आ चुकी है। जिस हिसाब से पकड़ बनाई है यहाँ पर ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग ने, काबिल तारीफ दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर बॉलिंग यूनिट की। खासतौर पर मैं कहना चाहूँगा निहाल की, 2 ओवर में 2 रन दिए हैं, 2 सफलताएं हासिल की है निहाल ने। ये एक अभी तक का सबसे बेहतरीन स्पेल मैं मानूंगा, क्योंकि इस 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 में इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग शायद ही किसी ने की है अभी तक। इसी के साथ अब यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश है। अब यहाँ से देखा जाए कि गेंदबाज कितने सुस्त नजर आते हैं, या फिर उनके अंदर एक शोर रहता है टीम को आगे ले जाने का। अभी तक तो बहुत बड़ा काम किया है गेंदबाजों ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी वलसाड स्ट्राइकर्स की टीम ने। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इस बार बैकफुट पर गए और हल्के बल्ले से कट किया पॉइंट की दिशा की तरफ। जब कभी आप एक 70 के ऊपर का स्कोर जब चेस करते हैं अभिषेक 8 ओवर के इस मुकाबले में, तो आपको चाहिए कि आप स्टार्ट ऐसी प्रदान करें अपनी टीम को कि पीछे जो आने वाले बल्लेबाज होते हैं उनके लिए लक्ष्य को चेस करना आसान हो जाए। देखिए फर्स्ट इनिंग में आपने देखा होगा, पहली गेंद से बल्लेबाजों का माइंडसेट कुछ अलग ही नजर आया था। फर्स्ट गेंद इनिंग की शुरुआत हो रही थी, वहां पे उन्होंने चौके के लिए धकेल दिया था, तो वो माइंडसेट भी दर्शाता है। इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था लॉन्ग ऑन की दिशा पर, बाहरी किनारा जरूर लगा लेकिन भाग्यशाली रहे, विकेट कीपर के दस्तानों में नहीं गई गेंद। कुछ हद तक परेशान जरूर है और क्यों नहीं होंगे, 6 विकेटें अभी तक अपनी गंवा चुकी है यहाँ पर वलसाड स्ट्राइकर्स, और काफी बड़ा मानो पर्वत जैसा
लक्ष्य अभी नजर आ रहा होगा वलसाड को। बहुत ही बढ़िया शॉट, संपर्क इतना बढ़िया, आवाज इतनी बढ़िया आई थी कि मालूम पड़ गया था बल्ले से संपर्क होते कि जाएगी सीमा रेखा पर और 6 रन मिलेंगे। और बैट और गेंद के बीच में जो कनेक्शन थी, उसके बाद वो आई मीठी ध्वनि ये बता गई कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, लेकिन अब इनमें इंटेंट नजर आ रहा है, जिस चीज की मांग रहती है हमेशा क्रिकेट में। और अब फील्ड प्लेसमेंट में भी कुछ तब्दीली नजर आएगी। फिलहाल यहाँ पे ओवर देखेंगे अब कंप्लीट होता हुआ, तो कुल मिलाकर ओवर नंबर 5 अब कंप्लीट होता हुआ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 5 स्कोर 21, लॉस ऑफ 6 विकेट, 6 विकेट का पतन हो चुका है। अब इनके पुछल्ले बल्लेबाज आ रहे हैं, इनके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई है, क्योंकि आपको पहले टॉप ऑर्डर को सूझबूझ के साथ टीम को आगे ले जाना होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले विशाल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और निहाल ने भी उनके कार्यों को दोहराने का प्रयास भी किया और उसमें सफल भी रहे, और यही सब चीज को लगातार आगे करने की कोशिश। 8 ओवर का यह निर्धारित मुकाबला, 6ठे ओवर की शुरुआत। रिवर्स स्वीप शॉट खेल दिया इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से, जानते थे, भली भांति जानते थे वहां पर कि थर्ड मैन 30 गज के दायरे के अंदर है, उनके ऊपर से खेला हुआ शॉट, चतुराई भरा शॉट 4 रन के लिए। और अब ये आक्रामक अंदाज इनका बता रहा है कि अब इनको वहां तक पहुंचना है, लक्ष्य को भेदना है, और अगर आपको लक्ष्य दिखाई दे रही है ना, तो आप वहां से अगर तरकश से तीर निकालोगे तो निश्चित तौर पे आप इस चीज को भेद पाओगे। अब ऐसे शॉट पहले हमने देखा 6 लगाते हुए, अब चौके के लिए गए, रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेला इस शॉट को, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने के जो कयास लगाए जा रहे थे टीम की तरफ से, वो तो करते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। गेंदबाज तैयार है इस ओवर में, ये शॉट खोद करके निकाला है सर के ऊपर से। मिड ऑफ का खिलाड़ी था जरूर, लेकिन वहां पे गेंद पहुंची बाउंड्री के पार, जोड़िए एक और 4। बड़े अलग ही अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में ये जो बल्लेबाजी का पैनापन आपको नजर आ रहा है, ये बहुत कुछ बता जा रही है। अब गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश। जी हाँ, अभी तक जो कहानी रही थी पिछले ओवर के आखिरी गेंद से पहले तक, वो कहानी पे ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है, लेकिन उस छक्के और चौकों के बाद ऐसा मानो लग रहा है कि समेटने की पूरी कोशिश चलती हुई वहां पर बल्लेबाजों की ओर से। आमतौर पर हम पहले के जमाने में देखते थे कि गेंदबाज अगर यॉर्कर लेंथ उस स्पॉट पर गेंदबाजी करते थे तो उसको निश्चित तौर पर एक सेफ जोन माना जाता था, गेंदबाजों के लिए बचाव का एक तरीका माना जाता था। लेकिन अब ऐसे सारे शॉट्स आ गए हैं, हेलीकॉप्टर शॉट देखें, और भी बल्लेबाज जो वो खोद कर निकालते हैं वहां से गेंद को, वो सब चीज धीरे धीरे इंप्रूव होता नजर आ रहा है। अरे ये शॉट कितने दूर जाएगी, कनेक्शन सही है नहीं, फील्डर नीचे भी और पीछे भी, और आउट। जी हाँ, बिल्कुल, वहां पर रुकने का समय है नहीं अभी बल्लेबाज के पास, आएंगे तो प्रहार करना लाजिम है वहां पर, और उसी के चलते 2 चौके जरूर लगाए थे बल्लेबाज ने। तीसरे चौके की वहां पर तलाश में थे, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं, थोड़ा सा आउटसाइड एड्ज, ऊपरी किनारा लगा और हवा से कुछ देर बातें की गेंद, और उसके बाद एक आसान सा कैच। 7वीं सफलता अपने नाम की है यहाँ पर ग्लोब लिंक वेस्टिंग स्टार्स ने। देखिए, अब एक ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि अब यहाँ पे आपको डू एंड डाई वाला सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं, कि आपको एक तरफ से विकेट भी बचाना है, एक तरफ से रन भी बरसाना है, क्योंकि ऑलरेडी इस टीम ने लगातार विकेटों की झड़ी जो लगा दी इनके सामने। टॉस जीतकर जरूर पहले इन्होंने चुनी थी गेंदबाजी, लेकिन ये सारे चीजों को फेल कर दिया है।
सामने वाली टीम ग्लोब लिंक ने काफी कमाल का क्रिकेट यहाँ पर दिखाती हुई जिस तरह से गेंदबाजी की है, इनके गेंदबाजों ने लगातार बल्लेबाजों को धाराशायी करते हुए। देखिए अभिषेक, मैं समझता हूँ कि स्टार्ट बहुत मैटर करती है, चाहे वो गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी हो। खासतौर पर जब आप बल्लेबाजी पर इतना विशाल लक्ष्य को चेस कर रहे हो तो आपकी स्टार्ट इतनी होनी चाहिए कि आप कम से कम 2 ओवर के चलते 20 से 25 रन अपने स्कोरबोर्ड पर लगाने में कामयाब हो। ये तब होता है जब आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। जी बिल्कुल, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है और अब यहाँ से कितने रन्स और बन पाएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी तक अब जो कुछ बड़े शॉट्स आए उसके बदौलत टीम फिर भी सिर्फ और सिर्फ 31 तक ही पहुंच पाई है और टीम को एक बड़े स्कोर तक जाना है। अब यहाँ से क्या लग रहा है आपको कि टीम कैसे आगे बढ़ना चाहेगी? पंख लगाने होंगे वहां पर वलसाड स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। अपने बल्लों पर इस बार पंख लगाए जरूर है, लेकिन वो जाएंगे नहीं सीमा रेखा पार, क्योंकि नीचे है शिकारी वहां पर फील्डर और धाराशाही करते हुए पंछी को एक और विकेट, एक और सफलता अपने नाम। इस परफॉर्मेंस से निश्चित तौर पे खुश नजर नहीं आएगी टीम, जिस तरह से लगातार विकेटों की झड़ी लगी है। सूझबूझ के साथ पहले एक अलग माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ इनको आना चाहिए था और बल्लेबाजों ने भी कुछ गलतियां की। क्या अब यहाँ से आप कैसे देख रहे हो? यहाँ पे बल्लेबाजों की गलती आपको ज्यादा दिखी है या फिर अच्छी गेंदबाजी हुई है सामने वाली टीम से? जैसे कि आप पानी और रेत को अपनी हाथ में ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते, उसी तरह ये मैच भी पूरी तरीके से इनके हाथों से स्लिप होता हुआ, फिसलता हुआ वलसाड स्ट्राइकर के। यदि घोड़े की लगाम कसनी चाहिए थी तो वो स्टार्टिंग के शुरुआत के जो 2 ओवर्स थे पावर प्ले के, तब अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती और केवल 1-2 विकेट तब गिरती तो शायद वहाँ पर इस समय पर मैच का रुख कुछ और होता। लेकिन यहाँ पर पकड़ बनाई है ग्लोबल लिंक ने, टैप किया उसे, एक बार फिर से सिंगल लेने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल रहेगी। प्रयास लगातार जारी है, कुछ ना कुछ करने की तैयारी है और इस तैयारी में 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब एक नजर स्कोर कार्ड पर डाली जाए, अगर इस ओवर के संपन्न होने के बाद कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल अब यहाँ से खत्म होता हुआ इस आखिरी इनिंग में पहले मैच के, तो कुल मिलाकर स्कोर अभी भी 31 पर रुका हुआ है। 8 विकेट टीम गंवा चुकी है। अब यहाँ से इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आखिरी बल्लेबाज का आना शेष है, तो ऐसे में अब कुछल्ले बल्लेबाजों के लिए ये काम आसान रहने वाला है नहीं। फिर भी इनके द्वारा कोशिश तो रहेगी कुछ ना कुछ करने की, अब बड़े शॉट्स लगाएं। अभिजीत अब यहाँ पर गेंदबाजी का दारोमदार संभालेंगे। वो किस कदर गेंदबाजी करते हैं, किस अंदाज में करते हैं, क्योंकि गेंदबाजों का तो हमने देखा है कि कल से बोलबाला रहा है। लगातार स्पॉट भी सही पकड़ा है इन्होंने, टप्पा भी सही जगह पे रखा है और एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आमतौर पर टेनिस क्रिकेट में हम देखते नहीं है, उसकी खोज हो चुकी है। पुल शॉट या हुक शॉट के लिए जाते हैं बल्लेबाज, बट यहाँ पर अगर आप पुल शॉट लगाएंगे तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर फील्डर को वहाँ पे तैनात करके रखते हैं उस एरियाज में, चाहे स्क्वायर लेग की दिशा हो, फाइन लेग की दिशा हो, मिड विकेट की दिशा हो, तो आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर मुश्किल रहती है, जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ मैचेस में। इस बार ये गेंद उठाल करके खेला है, वहां से ऑफ साइड से खींच करके मारा, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद पड़ी। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने इसको भेजा था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, उनके खिलाड़ी थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ दर्शक के रूप में। 6 के लिए गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार। दिव्येश ने मानो मोर्चा संभाला है बल्लेबाजी का। यहां से अभी भी 39 रन बनने बाकी है इस मैच को जीतने के लिए। आतिशबाजी वाली पारी यहां पर खेलनी होगी दिव्येश को। आतिशबाजी तो करनी पड़ेगी अगर
आप 37 तक ही पहुंच पाए, इतने बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं, तो ये चीजें होना जरूरी है। एक और बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। इस बार फील्डर वहां पर चूके, लेकिन गेंद नहीं चूकेगी 6 रन से। और अब दिव्येश को देखिए, लगातार अब दिव्येश का अंदाज, लगातार जिस तरह से दिव्येश बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार इनका अंदाज दिव्य होता चला जा रहा है। नाम इनका दिव्येश है और कुछ उसी तरह की बैटिंग को ये लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सिक्सेस और अब ये बता रहा है इनका बल्लेबाजी स्टैंडर्ड। उस उम्मीद की किरण को एक नई रोशनी दी है दिव्येश ने। 33 रन यहां से चाहिए और वो संभव है। एक और बढ़िया गेंद, बेहतरीन शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन की मांग जरूर की थी दिव्येश की, लेकिन उसे नकारा। 32 रन चाहिए 9 गेंदों में। यदि 5 छक्के लगते हैं यहाँ पर अभिषेक, तो मैच का हाल कुछ और हो सकता है। लेकिन आसान काम रहेगा नहीं इस ग्राउंड पर 5 छक्के लगाना, लेकिन ये चीज हो सकता है। क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है, बट देखते हैं ये क्रिकेट कैसे चलता है, कैसे आगे बढ़ता है। फिलहाल एक जोरदार अपील थी, लेकिन बल्लेबाज तेज थे विकेट पर चहलकदमी करने को बेताब भी नजर आए, और इस तरीके से एक एक रन पुटी की तरह काम करेगा इनके लिए। वलसाड स्ट्राइकर्स के लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आने वाले 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर रहेंगे दिव्येश, जिन्होंने 2 छक्के जरूर लगाए हैं इस ओवर में। यहाँ से 2 बाउंड्रीज, 2 छक्के या फिर 2 चौके अगर लगेंगे, तो वो जो उम्मीद की किरण पे रोशनी डाली थी इन्होंने, उसको बरकरार रख पाएंगे अगले ओवर में भी। बाहरी किनारा, जी नहीं, वो जो एक दिया बुझने से पहले पहले जो लौ फड़फड़ाती है, उसी की वहां पर झलक देखने को मिली थी। 2 छक्के लगे, उसके बाद अपना विकेट गंवा बैठे दिव्येश। और इसी के साथ अब यहाँ पर लगातार दिव्येश के द्वारा एक लगातार लौ दिखाने की कोशिश, और अंतिम जोड़ी अब मैदान पर होगी। अंतिम विकेट मैदान पर यहाँ पे आप सब देखेंगे, और अब इनके द्वारा कैसे बल्लेबाजी होती है। अब कुछ ना कुछ बड़े शॉट्स लगाकर ही जाएंगे, ये तो इनके अंदर ये चीजें चल रही होगी, इनके जहन में ये सारी बातें चल रही होंगी, और ऐसा करना लाजमी है, क्योंकि ऐसे वक्त पे जब आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, तो आपके ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, आप इन कर्तव्यों का निर्वहन करें और लगातार ये काम कितने दूर तक ले जा पाते हैं। फिलहाल अब यहाँ से 7वें ओवर के क्रिकेट में ये आखिरी गेंद का खेल शेष। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से कट किया उसे, बैकवुड पॉइंट के क्षेत्र में आते ही बहुत ही खूबसूरती के साथ चौका बटोरा बल्लेबाज ने। लेकिन देखिए, अभी भी मैं कहूंगा कि एक पैर ग्लोबल लिंक वेस्टार्स ने अपना जीत के रेखा के उस पार रखा है, और एक और पैर डालकर जीत की उस दहलीज को पार करना बाकी है। लेकिन 6 गेंदें अभी भी बाकी इस मुकाबले में, कुछ भी संभव है। जैसे कि हम आमतौर पर कहते हैं कि आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्रिकेट में, कोई प्रेडिक्शन आपका कभी भी फेल हो सकता है। तो यहाँ से चाहिए कि 49 रन पर पहुंची है अभी तक 9 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए, अब यहाँ पे आखिरी ओवर का खेल शेष है, 27 रन चाहिए, कम से कम 4 बिग हिट्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे इस मुकाबले में बने रहने के लिए, अविजीत रहने के लिए। तो अब यहाँ से क्या ये चीज काम मुश्किल रहने वाला है, या फिर इसको आसान करके दिखाएंगे। आखिरी जोड़ी कोशिश में कामयाब होने के इरादे से ये मैदान पर डटे हुए हैं, गेंदबाज तैयार है। पहली गेंद की शुरुआत हुई है, लेकिन इसी बीच यहाँ पे
गैप से निकलकर डीप के जालिम जब तक गेंद जाती तब तक अवसर था छोर बदलने का। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने छोर को बदला, मोर्चा संभालने की कोशिश चल रही है। अब यहां से 5 गेंदों में 26 रन और चाहिए उसामा। यहाँ बिल्कुल जिस हिसाब से विशाल लक्ष्य वहां पर खड़ा किया था ग्लोबल लिंक ने, उस लक्ष्य का पीछा जरूर किया है, लेकिन अपने फैंस जो है उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतर नहीं पाई वलसाड स्ट्राइकर्स। लेकिन अभी भी ये पहला मैच उन्होंने खेला है इस प्रतियोगिता में। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे भी सारा आसमान बाकी है। जंग तो अभी शुरू हुई है। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा, डायरेक्ट हिट होती तो यहीं पारी को समाप्त होना पड़ता। आखिरी विकेट की तलाश में वहां ग्लोबल लिंक व स्टार शिपिंग। हिमांशु पाटिल स्ट्राइक पर मौजूद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर पढ़ लिया था वहां पर बल्लेबाज को, थोड़ा सा शफल होकर ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गए बल्लेबाज, लेकिन उनको रीड किया आसिफ शेख ने, उनसे दूर रखने का प्रयास था लेकिन वाइड। बास की निगाहें वहां पर अंपायर मोहम्मद रफी की, जिसे चूक नहीं पाएंगे आप। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड खेला, 1 बाउंस ओवर द बाउंड्री रोप। बहुत ही बढ़िया अद्भुत पारी, यहां पर एक फिनिशिंग टच, वो एक तड़का लगाते हुए हिमांशु पाटिल। लेकिन दिल्ली अभी भी काफी बहुत दूर आपके लिए नजदीक हो सकती है अभिषेक, लेकिन अगर बात करें वलसाड स्ट्राइकर्स की तो उनके लिए उनकी नजरों से भी परे बहुत ही बढ़िया शॉट इस बीच खेल दिया से मिड विकेट के क्षेत्र पर। दर्शक चाहते होंगे कि यह खिलाड़ी ने क्यों पहले प्रवेश नहीं किया बल्लेबाजी के लिए। बिरयानी में जो मसाला होता है ना, जो ऊपर से आपको लगती है कि एक सॉलिड आपको फिनिशिंग दी गई है, लेकिन नीचे जो मसाला होता है वो मसाले का काम कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। देखिए एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग के साथ खेला हुआ शॉट, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के यहाँ पर उसको रोकने का। तो इसी के साथ यहाँ पर इस मुकाबले को फाइनली जीत चुकी है टीम ग्लोब लिंक। बड़े ही शानदार अंदाज में इस मुकाबले को फिनिश किया। SkyExchange.net presents 10PL सीजन 4 दूसरा दिन, पहला मुकाबला, और पहले मुकाबले को अपना नाम किया पावर्ड बाय पेट्रोमैन। पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले मैच की शुरुआत हुई है, ग्लोब लिंक ने जीत के साथ दिन की शुरुआत की है दूसरे दिन के। तो आप सब हमारे साथ जुड़े हैं सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से। थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा अपने सारे व्यूअर्स का, सपोर्टर्स का, दर्शक का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बेहतरीन से खुशबूदार मुकाबले को साथ लेकर चल रहे हैं इस 10PL में। ये कहानी, ये कारवां दुबई से, UAE से सीधा चलकर जा पहुंचा है यहाँ से अब हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान की सरजमी पर। इन्होंने इतिहास लिखा है, इन्होंने हिस्ट्री बुक में दर्ज कराई है, एक और इतिहास के पन्नों में दर्ज कराई है अपनी गाथा को, अपनी कहानी को। जिस तरह से लगातार अभी तक ये सारी चीजें हुई है। एक नजर स्कोर कार्ड पर मैच समरी डाला जाए तो ग्लोब लिंक की टीम पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण मिला था, और वो जब बल्लेबाजी के लिए आए तो लगातार उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी के कसीदे पढ़े। तुषार ने अच्छी बल्लेबाजी की और अब हाइलाइट्स भी आप सब देखेंगे। तो चलिए दूसरे मैच में जुड़ने से पहले हम यहां से सीधे चलेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां पे
मौजूद हैं हमारे साथ हरीश पांड्या। धन्यवाद समालोचन कक्ष। सुप्रभात दोस्तों, आप देख रहे हैं skyexchange.net presents 10PL season 4 powered by Petroman. We are thankful to our beverages partner Pepsi. We also thank our strategic timeout and official partner Akar Chain. We also thank our official partner Socos.io, Digibits and Smart Chain. We also thank our kitting partner UYP, Unleash Your Potential, and we also thank Made in India Pictures, our broadcaster aggregator. So I'm here to announce Man of the Match award, and Man of the Match is तुषार रणदीवे, जिन्होंने 44 रनों की पारी खेली। और तुषार रणदीवे, आपसे प्रार्थना है कि अब यहाँ पर आ जाएं। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड 10PL की एक खूबसूरत ट्रॉफी और skyexchange.net इनके द्वारा 5,000 रुपये की इनामी राशि आपको दी जाएगी। तुषार रणदीवे, बिना कोई समय खराब किए आपको अब यहाँ पर हाजिर होना है। हमारे साथ है अनीश राज। अनीश का एक अलग अंदाज है, बहुत ज़बरदस्त पब्लिक रिलेशन है सूरत में, भरूच में, गुजरात में। और आइए तुषार रणदीवे, देखिए तुषार रणदीवे को पता था 5,000 रुपये ट्रॉफी, इसलिए बैग भी साथ में लेकर आ गए थे। आइए तुषार, एक खूबसूरत ट्रॉफी आपको दी जा रही है। तुषार, मराठी में कहा जाए तो तुषार झाला हुशार, और ये खूबसूरत ट्रॉफी तुषार, गुड जॉब, थैंक यू। और skyexchange.net का 5,000 रुपए का ये चेक आपका हुआ, तुषार रणदीवे। सुपर जॉब बाय सुपर बैटर, थैंक यू अनीश जी। तुषार, कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, पहली पायदान है। कल इतना क्लोज आके बबलू पाटिल ने मैच को लाया, कल हार गए लेकिन आज जीत गए। कैप्टनशिप को कितना एंजॉय करते हैं? मतलब कैप्टनशिप का प्रेशर रहता है या प्रेशर नहीं रहता है? कैप्टनशिप में तो कुछ प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि मैं तो कैप्टन हूँ बस, पर हैंडल अंदर तो अविनाश रामगुड़े और बबलू पाटिल ही करते हैं सब, तो कैप्टन पे कोई प्रेशर नहीं रहता। वही सब देखते ग्राउंड वाला, मेरे को टॉस को ही भेजते, क्योंकि मैं लक्की मैन हूँ इसीलिए मेरे को भेजते। तुषार, बैटिंग आज कैसी लगी? पिच के ऊपर सबसे फेवरेट शॉट कौन सा था आपका आज? का मेरा सबसे फेवरेट शॉट रिवर्स वाला ही था, क्योंकि कल देखा जाए तो हमने काफ़ी अच्छा बैटिंग नहीं किया, किसी ने बॉलिंग बहुत अच्छा किया था, थोड़ा बैटिंग में ख़राब परफॉर्मेंस हो गया था। तो थोड़ा कल थोड़ा हमारे सर ने मीटिंग रख के थोड़ा सबसे बात किया, सब पे थोड़ा मतलब प्रेशर डाल के वो क्या खेल रहे हैं आप, ज़रा अच्छे से खेलो, हिसाब से ज़रा थोड़ा सब आज ज़रा अच्छे से खेल के और नेक्स्ट मैच भी थोड़ा अच्छा ही खेलेंगे। और एक आखिरी सवाल, विशाल निगोट और उसके साथ आज निहाल तुसामत, आपको लगता है 2023 के पूरे साल के लिए आपको अटैक मिल गया है? काफ़ी अच्छा अटैक मिला है, क्योंकि नेहाल तो हमारी टीम का, और देखा जाए तो 2022-23 से काफ़ी अच्छा डाल रहा है बॉलिंग हर जगह। एनबी में भी उसने बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट लिया, इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड लिया। विशाल देखा जाए तो हर जगह आइकॉन टूर्नामेंट खेलता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो ये टीम के लिए हमारे काफ़ी अच्छा है कि सब हमारे पुणे के ही लड़के और काफ़ी अच्छा बॉलिंग डाल रहे हैं और बेहतरीन डालते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग का जो जहाज है अब समंदर पर तैर रहा है, उसकी लिंक लग चुकी है, और ये जहाज कितना आगे जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन जहाज सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि उसके खलासी और जो कैप्टन है वो बहुत ग्रेट है। गुड जॉब ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग। अगले मैच के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सीधा चलेंगे अब कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया।